Hello students, how are you? This is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. As you must be knowing that I teach quantitative aptitude and logical reasoning for competitive exams. So if you are preparing for any type of competitive exam और अगर आपके competitive exam में quantitative aptitude and logical reasoning ये subjects है, then this platform, this module, this class is for you. In the today's session, we are going to solve the exam level questions from boat and stream, which is a part of the topic time, distance and speed. This is the 8th module of the topic. Previous 7 modules आप चेकआउट करेगा इस क्लास को देखने से पहले. Okay, so let me share the screen with you first. Okay, so this is the class 8. पहले के 7 मॉड्यूल 7 क्लास आप देखना इस मॉड्यूल को देखने से पहले. In this module we are going to cover the exam level questions from the topic boat and stream. Boat and stream is a part of time, distance and speed. Okay, so let's start with the question. Previous module में हमने boat के concept किए थे and in this module we are going to solve exam level questions. First question. Ram rows a boat against a stream flowing at 2 km per hour for a distance of 12 km and then turns around and rows back with the current. If the whole trip lasts 8 hours, find the ram's rowing speed in still water. This 2 km per hour, as we can see from the question, this is nothing but the speed of stream. Okay, because stream is flowing at 2 km per hour. Okay, the distance is nothing but 12 km and the total time taken to go 12 km upstream and to go 12 km downstream is 8 hours. आपको बोट का स्पीड निकालना है. ठीक है, तो राम जो है ना वो सिचुएशन कुछ ऐसा है, वो 12 किलोमीटर ऊपर जा रहा है एंड 12 किलोमीटर नीचे आ रहा है. ओके, सो द टोटल डिस्टेंस ही इज कवरिंग इज 12 + 12 दैट इज 24 किलोमीटर. पूरी ट्रिप के लिए उसे 8 आवर्स का टाइम लग रहा है. Speed of stream is given as 2 km per hour and we need to find the speed of boat. Now we know कि अगर कोई इंसान upstream downstream जा रहा है तो हमारे पास upstream downstream speed होना चाहिए. So speed of boat जो कि निकालना है, let us assume that this speed is x किलोमीटर per hour. So from this we can say that downstream speed क्या हो जाएगा? Downstream speed is nothing but boat speed plus water का speed, that is equal to x + 2. And upstream speed is nothing but boat का speed minus पानी का speed, that is equal to x - 2. ठीक है, तो हमें downstream speed upstream speed x के फॉर्म में मिल चुका है. Now from here we have to make one equation and we need to find the value of x. Okay, now the total time is 8 hours. ये total time क्या है? It is nothing but the time taken by Ram to go downstream and the time taken by Ram to go upstream. This is 8 hours. अच्छा, डाउनस्ट्रीम टाइम कितना लगा होगा? वी नो कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डाउनस्ट्रीम जा रहे हो तो डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड कंसिडर करनी है, अपस्ट्रीम जा रहे हो तो अपस्ट्रीम वाली स्पीड कंसिडर करनी है. सो द टोटल इट इज 8 hours. Okay, the distance we know it is 12. SD is nothing but x + 2 and SU is nothing but x - 2. Okay, now so finally एक equation हमें मिल चुका है. Now if we'll solve this equation we will get the value of x. Now how to solve this equation? One method is that कि आप cross multiplication करो, but the problem here is that कि जो x हमें निकालना है वो denominator में बैठा है. It means that if we'll solve this equation we will enter into the world of quadratic. ये equation quadratic में जाएगा. थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है इस यहाँ से x निकालना. तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा मेथड यूज करते हैं. वी विल यूज ऑप्शन एलिमिनेशन. क्वाड्रेटिक में नहीं घुसना है, इट विल टेक टाइम. सो बेस्ट इज हियर डू ऑप्शन एलिमिनेशन. पुट द अप्रोप्रिएट, पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स जो भी ऑप्शंस में दिए हैं एंड चेक कि LHS RHS किस में इक्वल हो रहा है. नाउ बिफोर वी डू ऑप्शन एलिमिनेशन, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 4 कॉमन है, तो क्यों ना इस 4 को उड़ा दिया जाए. लेट्स मेक द इक्वेशन लिटिल बिट सिंपल. So now our equation is like this. Now first option is 4 km per hour. Let's put x is equal to 4. So 3/6 plus 3/2. ये वैल्यू 2 बनना चाहिए. क्या ये वैल्यू 2 है? 3/6 is 0.5 and 3/2 is 1.5. Yes, it is 2. It means that option A is the correct answer. Next.
A boat can travel 9.6 kilometer downstream in 36 minutes. इतना डेटा देख के हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकाल सकते हैं, राइट, बिकॉज वी नो द डिस्टेंस, वी नो द टाइम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इफ स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 10% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 10% ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड हम निकाल सकते हैं, यानी कि हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं। नाउ सिंस वी नो टू स्पीड, we should know कि we can find other two speed also. Next, पूछा क्या है, how much time will the boat take to go 19.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम? 19.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो हमें अपस्ट्रीम स्पीड पता होनी चाहिए। So 19.2 divided by upstream speed. So our job is to find upstream speed. That will give you the answer. सबसे पहले हम निकालेंगे downstream speed. Speed is equal to distance upon time. 36 minute. But here we need to write the minute को हमें R में convert करना है. So 36 divide by 60 करना है. Divide by 60 को यहाँ ऐसे नहीं लिखना है, ये confusion create कर सकता है. तो हम क्या करेंगे, इसको भेज देंगे ऊपर ऐसे. This is how you can write. Point and 0 cancel, so this is 96 into 6. 16 6 are 96. So downstream speed is 16 kilometer per hour. So from this we can say कि speed of stream, which is 10% of downstream speed, it will become 1.6. हमें निकालना है upstream speed. अच्छा, upstream speed कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? So we have this formula that SS is equal to downstream speed minus upstream speed का half. Okay, from this we can find upstream speed. Speed of stream is 1.6. 16 minus 4 is 12. So it is 12.8. So upstream speed is 12.8. इसको यहाँ डाल देंगे. So this is nothing but 192 divided by 128. Okay. अच्छा, एक ऐसा बड़ा नंबर अगर हम सोचे जिसके टेबल में 128 आता है तो वो 16 है. 16 6 are 128. और क्या ये 16 से डिवाइड हो रहा है? यस, ये भी हो रहा है. So this is 112 and 16. Wait, 32, 112 and 16 8s are 128. So this is 12 by 8. 12 by 8 can be written as 3 by 2. यानी कि 1.5 R is the answer. Next, two boats A and B start towards each other from two places 150 किलोमीटर apart. ऐसा है, मान लो दिस इज बोट ए जो है वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है. तो सपोज दिस इज बोट ए, यहां पर एक बोट खड़ी है, बोट ए, एंड हियर देयर इज अ बोट B like this. Okay, the distance between them is 150 किलोमीटर. एक ही टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं. स्पीड ऑफ बोट ए is 16 kilometer per hour and speed of boat B is 14 kilometer per hour. Boat A is going downstream, boat B is coming upstream. रास्ते में कहीं मिलेंगे, सपोज यहाँ पर कहीं मिल गए वो लोग. Okay, the question is at what time when they will meet, means after how much time they will meet. ठीक है, let's assume that they will take T hours to meet. मतलब T hours के बाद मान लो कि वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे और इसी T की वैल्यू हमें निकालनी है. ठीक है, नाउ वन बोट इज गोइंग अपस्ट्रीम, वन बोट इज गोइंग डाउनस्ट्रीम. तो बोट ए जो है वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो यहां से हमें डाउनस्ट्रीम वाला स्पीड पकड़ना है. तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा? इट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ बोट विच इज 16
plus the speed of stream. Speed of stream is not given, so let us assume कि speed of stream is x किलोमीटर पर आवर. ये हम मान के चल रहे हैं. आप देख रहे हैं हमने दो दो वेरिएबल कंसिडर किए हैं इस क्वेश्चन में. वन इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसको हमने x माना है, एंड वन इज दैट दे हैव टेकन t आवर्स. सिमिलरली बोट B इज गोइंग अपस्ट्रीम, तो बोट B के लिए अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट बोट का स्पीड विच इज 14 माइनस पानी का स्पीड विच इज x. ओके, द टोटल दे हैव टू कवर इज 150 किलोमीटर. ओके, तो बोट B ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? कैन वी से दैट द डिस्टेंस कवर बाय बोट B इज नथिंग बट स्पीड ऑफ बोट B विच इज 14 माइनस x इंटू टाइम टेकन बाय बोट B. कितना टाइम लग रहा है उसको t आवर्स, तो इंटू t. एंड बोट A कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो बोट A का स्पीड इज 16 प्लस x और वो t आवर्स तक चल रहा है. ये दोनों डिस्टेंस मिला के टोटल बनना चाहिए 150. So this is our equation. Okay, now if we'll solve this equation, we should get the value of t. But the problem here is that there are two variables, x and t. We have one linear equation and two variables. But अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो एक जगह पे माइनस एक जगह पे प्लस है. Let's see. So this is if you open the bracket then 14t minus xt. अच्छी बात यह है कि ये x जो है वो उड़ गया. ठीक है. So it is 14t plus 16t, that is equal to 30t, which is equal to 150. So t is equal to 5 hours. So option is option D, 5 hours. Next, speed of boat A, no, sorry, speed of boat in still water is 12 kilometer per hour. So SB is given. Speed of stream is x kilometer per hour. So SS is equal to x. If in traveling 270 kilometer upstream, the boat is taking 66% more time than traveling 270 kilometer downstream. डेफिनेटली वी नो कि अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है, तो 270 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 66% मोर टाइम. नाउ 66% मोर टाइम का मतलब ये है कि रेशियो जो इसका होता है वो 5/3 होता है. अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उसके पहले एक परसेंटेज नाम का टॉपिक है, उसे रेफर करना है, जहां पर हमने इसको डिटेल में डिस्कस करा है. ओके, सो व्हाट इट इज गिवन, हमें क्या दिया गया है? तो देखो दो चीजें हैं, एक है डाउनस्ट्रीम और एक है अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के टाइम का रेशियो इज गिवन. नाउ दैट रेशियो इज 5:3, यानी कि अपस्ट्रीम को 5 यूनिट का टाइम लग रहा है तो डाउनस्ट्रीम को 3 यूनिट का टाइम लग रहा है. ओके, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है बेसिकली. Okay, so time ka ratio is 3:5. So can I say when the distance is same, speed and time are inversely proportional? तो speed का ratio is 5:3. यानी कि downstream speed versus upstream speed का ratio is 5:3. ठीक है. So downstream speed क्या होता है? Downstream speed is nothing but boat का speed plus पानी का speed, and upstream speed is nothing but boat का speed minus पानी का speed. This ratio is 5/3. बोट का स्पीड वी नो इट इज 12, पानी का स्पीड इज x. दिस रेशियो इज 5/3. ठीक है. एक तो ये है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, दूसरा ऑब्जर्वेशन से भी हम कर सकते हैं. ऑब्जर्वेशन से भी अगर देखे तो क्या ऐड कर दे तो रेशियो 5/3 आ जाए. नाउ इफ विल डू 12 प्लस 2 तो ये 14 होगा, नॉट पॉसिबल. 12 प्लस 4 16, नॉट पॉसिबल. 12 प्लस 1 13, नॉट पॉसिबल. आई एम ट्राइंग ऑप्शन एलिमिनेशन, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो. अच्छा, 12 प्लस 3 15, और 15 और 5 में रिलेशन है. सो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 3, जो कि लग रहा है कि बन जाएगा, सो इट इज 15 अपॉन 12 माइनस 3. 15/9 कैन बी रिटर्न एज 5/3. तो यस, x इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 किलोमीटर पर आवर. दूसरा मेथड ये था कि आप इसको सॉल्व कर लेते तो भी आंसर आता. अगर हम सॉल्व करके देखें तो लेट्स सी. सो दिस इज नथिंग बट
60 माइनस 36 होता है 24, सो x इज इक्वल टू 3। एग्जैक्टली यहाँ से भी हमारा आंसर बन गया x इज इक्वल टू 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। IBPS PO 2020 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, boat is taking 35 minutes less to travel 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम देन इट टेक टू ट्रैवल सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। तो बोट को 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में 35 मिनट्स कम लग रहे हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर SB, दिस इज गिवन। यू नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। वंस अगेन स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम मान लेते हैं x। ठीक है, नाउ अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम का डिफरेंस इज गिवन एज 35 मिनट। दिस इज गिवन टू अस। ओके, अपस्ट्रीम टाइम कैन बी रिटर्न एज डिस्टेंस अपॉन SU। 35 मिनट्स को हम r के फॉर्म में लिखे तो इट इज 35 बाई 60 hours। करेक्ट, वी कैन राइट लाइक दिस। डिस्टेंस इज 28 किलोमीटर। SU, now we know the speed of boat, so from this we can say that SU is equal to boat का speed which is 14 minus पानी का speed which we have assumed as x, and downstream speed is nothing but 14 plus x। 35 by 60 पे simplify then it is 7 by 12। ठीक है, यहां से once again हमें x की वैल्यू निकालनी है। आप यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो it will take more time because we will once again enter into this world of quadratic, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में ऑप्शन एलिमिनेशन से वी विल सी कि कौन सा x का वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। वंस अगेन ये करने से पहले अगर कुछ काट कूट करके इक्वेशन सिंपल हो रहा है तो वो कर देंगे। तो वी कैन सी दैट एवरीवेयर 7 इज कॉमन, तो 7 को हटा देते हैं। सो इक्वेशन इज नाउ 4/14 माइनस x। Okay, now here we will put the value of x। कौन सी x की वैल्यू सेटिस्फाई करे? If you put x as 10 तो 4/24, नहीं सॉरी 4/14 minus 10, 4/4। So this is nothing but 1 minus 1 by 6 that is equal to 5 by 6। नहीं, 1 by 12 नहीं आ रहा है, so this is wrong। If you put x is equal to 8 then 4/6 minus 4/14 plus 8, 14 plus 8 22। ये कहीं से भी आपको 1 by 12 नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर एक प्राइम नंबर छुपा है 11, और 1 by 12 में 11 कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी पॉसिबल नहीं है। x, नाउ नेक्स्ट लेट्स ट्राई x इज इक्वल टू 2। सो 4/14 minus 2 12 16। Yes, this is coming. This is 1 by 12. So x is equal to 2 is the correct answer. Next. Speed of boat in still water is 24 kilometer per hour. Speed of stream is 4 kilometer per hour. So हमें दो स्पीड दे दिया गया है, यानी कि हम बाकी की दो स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल A to B downstream, A to B downstream is 36 minutes less than the time taken by the same boat to travel from B to C upstream. Now here the distance is not same. Downstream का distance is AB and upstream का distance is BC. BC कहाँ है? If the distance between A and B is 4 kilometer, then the distance between B and C. इसका मतलब है कि C तकरीबन कहीं यहाँ होगा और ये distance का this gap is 4 kilometer. You need to find the distance AB. ये डिस्टेंस AB निकालना। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस AB है ये x है, तो वी कैन से कि BC इज नथिंग बट x minus 4। करेक्ट, आपको x की वैल्यू निकालनी है।
क्वेश्चन देख के लग रहा है कि हमें अपस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड का जरूरत पड़ने वाला है. So upstream speed is nothing but 24 minus 4, that is 20. Downstream speed is 24 plus 4, that is 28. Now we have all the four speed. And we know कि A to B में 36 मिनट कम लग रहे हैं. मतलब अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम का गैप इज 36 मिनट. नाउ ठीक है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है? अपस्ट्रीम तो BC जा रहे, तो डिस्टेंस इज x माइनस 4 एंड अपस्ट्रीम का स्पीड इज 20 माइनस डाउनस्ट्रीम हम x किलोमीटर ट्रैवल किया था एंड डाउनस्ट्रीम का स्पीड इज 28. दिस गैप इज 36 मिनट. इसको हम आर में कन्वर्ट कर देते, 36/60. Okay, now how to solve this question? Once again, we need to find from here, we need to find the value of x. Two method through which you can find x का value. एक तो ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दूसरा है ऑप्शन एलिमिनेशन करो. इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रिस्क हम ले सकते हैं क्योंकि ये हियर x इज इन द न्यूमरेटर, तो ये एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा. सो दिस इज नथिंग बट 3/5. ठीक है. Okay, what we can do here is, let's simplify this equation. LHS में 20 and 28 is common, यानी कि 1/4, 4 is common. So 1/4 को क्यों ना बाहर ले ले. So this is x minus 4 upon 5 minus x upon 7. This is how we can write. This is equal to 3/5. 4 को यहाँ भेज देते हैं, यहाँ से निकाल के. So we can say कि 7 into x minus 4 minus 5x upon 35 is equal to 12/5. Let's solve this equation. So 5 and 35 cancel, so denominator में आ जाएगा 7. Okay, so 7x minus 5x is 2x minus 28 is equal to 12 sevens are 84. So 2x is equal to 84 plus 28. 84 plus 28 is 94, 104, 114 and 112. So 2x is equal to 112, so x is equal to half 56. So correct answer is option C, 56. यहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके तो भी हो जाता, बट क्योंकि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बन रहा था तो वी हैव सॉल्व द इक्वेशन. नेक्स्ट, a man can row a boat at a speed of 8 km/h in still water. So this is SB. He was rowing the boat downstream from one point to another. After traveling half the distance, the motor of the boat failed and stopped working. ठीक है, तो वो नीचे की ओर जा रहा था एंड बोट का स्पीड है सॉरी 8. आधा डिस्टेंस कवर करने के बाद फेल एंड स्टॉप वर्किंग. ही ट्रैवल्ड ऑन द बोट अलोंग द स्ट्रीम and reached his destination taking 6 hours more than the usual time. Speed of the stream is 2 km/h. What is the distance between the 2 points? ठीक है, तो ऐसा है सिचुएशन. एक इंसान यहाँ से यहाँ जा रहा है. Suppose he is going from point A to point B. He is going downstream. डाउनस्ट्रीम है तो डाउनस्ट्रीम वाला स्पीड भी चाहिए होगा, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड बन जाएगा 10. ठीक है. सो मान लेते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस 2x है, तो उसने आधा डिस्टेंस यहां तक, सपोज दिस इज पॉइंट C एंड दिस डिस्टेंस x एंड BC का डिस्टेंस इज आल्सो x. सो लेट्स अज्यूम कि टोटल डिस्टेंस इज 2x. ठीक है. आधा डिस्टेंस जो है उसने कवर किया where the motor boat is working. Motor of the boat was working. मतलब पानी का स्पीड भी था प्लस बोट का भी स्पीड था. तो आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए उसका जो स्पीड था वो था डाउनस्ट्रीम स्पीड, दैट इज इक्वल टू
10, ठीक है। और बाकी का आधा डिस्टेंस कवर करने के लिए मोटर बोट वॉज नॉट वर्किंग, सो वो सिर्फ पानी के सहारे नीचे चला गया। तो बाकी के आधे डिस्टेंस के लिए उसका जो स्पीड था वो था SS, ओके, विच इज इक्वल टू 2। अच्छा, ड्यू टू दैट सिंस हिज बोट स्टॉप वर्किंग ही टुक 6 hours मोर देन द यूजुअल टाइम। यानी कि अगर उसे यहां से यहां पहुंचने में अगर टी टाइम लग रहा था आइडियली, तो इस केस में उसे टी प्लस 6 hours ज्यादा लगे, ठीक है। यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो सपोज अगर वो एक ही स्पीड से जाता, इस वाले केस में उसका स्पीड जो है वो टाइम जो है वो 6 hours ज्यादा है, ठीक है। 6 hours ज्यादा है मतलब क्या, द डिस्टेंस ही हैज टू कवर्ड इज x, ठीक है। और वो अभी सिर्फ पानी की स्पीड से जा रहा है, सो x/2। और अगर वो डाउनस्ट्रीम स्पीड से जाता तो x/10 होता, एंड दिस डिस्टेंस, दिस गैप इज नथिंग बट 6 hours। ये 6 hours का गैप है, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द स्पीड, ठीक है। So if we'll do this, then 10x minus 2x, that is equal to 8x upon 20 is equal to 6 hours. So x is equal to 20 into 6 upon 8. हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच वी हैव अज्यूम्ड एज 2x. So 2x is equal to 20 into 6 into 2 upon 8, ठीक है। 20 into 2 is 40, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5, so answer is 30 किलोमीटर। Next, a motorboat whose speed is 12 km per hour in still water, so SB, takes 30 minutes more to go 24 km upstream than to cover the same distance downstream, ठीक है। तो उसे अपस्ट्रीम का जो टाइम है, ये हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया है, अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम का डिफरेंस इज 30 मिनट्स। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 24, ओके। एंड व्हाट इज अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड के लिए हमारे पास एस एस पता होना चाहिए, एस एस नहीं पता है, सो लेट अस अज्यूम कि एस एस इज एक्स। सो अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा 20 माइनस एक्स, एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 20 प्लस एक्स, ठीक है। एज यूजुअल हम इक्वेशन बनाएंगे, दिस इज 30 मिनट्स, 30 मिनट्स यानी कि हाफ एन आवर, ओके। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस विल बिकम 48 अपॉन, ये 1 होना चाहिए। नाउ वन मेथड इज वंस अगेन, यहां पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। आप सोचिए कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू क्या हो सकती है। ऑब्जर्वेशन से अगर हम निकाले तो x कैन बी, अगर हम x की वैल्यू 4 डालें, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 डालेंगे तो दिस विल बिकम 16 एंड दिस विल बिकम 24, जो कि हम डिवाइड कर सकते हैं। सो 48 अपॉन 16 माइनस 48 अपॉन 24, क्या ये 1 होता है, 48/16 इज 3, 48 माइनस 24 इज 1। यस, इट मीन्स कि बाय ऑब्जर्वेशन यहां से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू 4 है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन से हमने देख लिया कि x की वैल्यू इज 4, ठीक है। नाउ इफ x इज 4 यानी कि पानी का स्पीड 4 है, एंड अपस्ट्रीम स्पीड बन जाएगा 16 एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड बन जाएगा 24, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, if the speed of boat in still water is increased by 2 km per hour, previous speed was 20 km per hour, so the new speed of boat is 22, then how much time it will take for the boat to go 39 km downstream and 30 km upstream. So total time निकालना है, 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, सो इट इज 39/20। अच्छा, इसके हिसाब से
SS is 4। अभी ये जो है ये SC और SD काम नहीं करेगा क्योंकि पानी का बोट का स्पीड 22 हो चुका है। सो SD is now 26 and SU is now 18। ये 18 हो गया क्योंकि बोट का स्पीड चेंज हो गया ना, प्रीवियसली इट वाज 20, नाउ इट इज 22, तो अभी हमें नए स्पीड के हिसाब से जाना पड़ेगा। सो दिस इज द न्यू स्पीड। ठीक है, सो 39 अपॉन 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 26 एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का स्पीड इज 18। दिस इज द टोटल टाइम। 39 by 26 can be written as 3 by 2 and this can be written as 6 से डिवाइड करेंगे then it is 5 by 3। So basically this is 19 by 6। कितना आ रहा है ये? 19 by 6 hours। 19 by 6 hours लगेंगे टोटल टाइम। 19 by 6 hours can be written as 3 1 by 6 hours। 3 1 by 6 hours means 3 hours and 1 by 6 hours can be written as 10 minutes। So it is 3 hours 10 minutes is the answer। So option B is the correct answer। Next, ये एक बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अ बोट कैन ट्रैवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स। यानी कि 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स। ठीक है, ऑल्सो इट कैन ट्रैवल 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 77 kilometer downstream in 15 hours। Find the speed of boat। SB निकालना है। ठीक, अगर इससे हम इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन वुड बी लाइक दिस। 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि 36 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम स्पीड प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी कि 55 डिवाइडेड बाय SD, दिस इज 11। एंड फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन से कि 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम को इतना टाइम लगेगा एंड 77 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम को इतना टाइम लगेगा। दोनों मिला के हो रहा है 15 आवर्स। करेक्ट। नाउ फ्रॉम हियर यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए इक्वेशन में हमें SU SD है, यानी कि यार जॉब फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड। अभी यहां से अपस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालें? वंस अगेन आप अपस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड को ऐसे ज्यादा बेसिकली लीनियर इक्वेशंस, तो उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, बट दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं और ऑब्जर्वेशन से हमें एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर ये जो स्पीड है, देखिए ये क्या है, 55 by SD एंड दिस इज 77 by SD। आंसर एक होल नंबर है, कहीं पर भी पॉइंट में आंसर नहीं है। तो क्या ये नहीं लग रहा है कि ये दोनों नंबर भी होल नंबर होने चाहिए? तो 55 by SD एंड 77 by SD होल नंबर कब हो सकते हैं? चांसेस है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड 11 हो। करेक्ट, डाउनस्ट्रीम स्पीड 11 होगा तो आराम से डिवाइड कर देगा। सो लेट्स अज्यूम कि डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 11। तो यहां से हम अपस्ट्रीम स्पीड निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 36 डिवाइड बाई SU प्लस 5 इज इक्वल टू 11। So 36 upon SU is equal to 6. So SU is equal to 6। यहां से SU निकालते चेक करते कि क्या वो भी वही आ रहा है। So 48, yes, दोनों केस में हमारा अपस्ट्रीम स्पीड 6 आ रहा है। इट मींस कि आवर अजम्पशन वाज करेक्ट, डाउनस्ट्रीम स्पीड 11 है, अपस्ट्रीम स्पीड 6 है। यहां से बोट का स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों का स्पीड का एडिशन डिवाइड बाय 2। सो 11 प्लस 6 17, 17 का हाफ, 17 का हाफ, इट्स 8.5। सो आंसर इज ऑप्शन डी 8.5। तो यहां से हमने ये जो इक्वेशन हमने दो बनाए थे उससे हमने ऑब्जर्वेशन से हमने आंसर निकाला। So with this, in this particular module, we have covered exam level questions from the topic boat and stream. Thank you for watching this video. And if you have understood this video, then please subscribe to my channel. That is Math is Easy by Disha Shah. And keep on practicing math, keep on watching videos.
because math is easy. Thank you.